Hello all, I welcome you all to this new video of AKC AC Adda, and in this video we will be dealing with another sorting technology or another sorting technique, that is bubble sort, right? And we will be adopting the same procedure. First of all, we will be having a look over the algorithm that is associated with this sorting algorithm, with this sorting technique. Then after, we will be debugging that algorithm, and along with the steps of the algorithm, we will be taking up an example, and simultaneously we will be executing that algorithm, that example also, so that the complexities that are associated with the execution of the algorithm should be clear to all of the students, right? So we are just going to start straight away with the algorithm of bubble sort. Now we will be starting with the execution of the bubble sort, right? और हम लोग execution start करेंगे along with the help of the algorithm, steps of the algorithm of bubble sort, right? These are the steps. We will be considering each and every step of the algorithm one by one, and along with the help of an example, we will be seeing to it that how the algorithm actually works, right? हम लोग एक algorithm, एक example consider करते हैं. Let's say that we are having an array which is having the elements 3, 7, 9, 2. We know it very well that the index of the array starts from 0, 1, 2, 3. And now over this array we have to implement this algorithm, right? अब algorithm के steps को हम ध्यान से देखेंगे. यहाँ से ये for loop से शुरू हो रहा है. For loop we know it very well, initialization, condition and modification. If the condition is found to be true, control enters inside the loop, and if the condition is false, the control moves outside the loop, right? अब यहाँ पे हो क्या रहा है, for i equal to 0, इसका मतलब है we have to initialize a variable i with the value 0. फिर उसके बाद जाएंगे कंडीशन पे. कंडीशन क्या कह रहा है, i should be less than n minus 1. अब यहाँ पे n क्या है, n is basically the total number of elements in the array which are to be sorted. अब यहाँ पे total number of elements कितने हैं, 4 elements हैं. कंडीशन चेक कीजिए, i should be less than n minus 1, 0 should be less than n minus 1. n minus 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 should be less than 3. ठीक है, तो i की वैल्यू 0, ये वैल्यू 3. इज द कंडीशन ट्रू? यस, द कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल विल इंटर इनसाइड द लूप, राइट? कंट्रोल इंटर कर गया. यहाँ पे अब जब हम आ रहे हैं तो हमें अगेन वी आर इनकाउंटरिंग वन मोर लूप, है ना? यहाँ पे फॉर लूप फिर से है. अब ये कह रहा है फॉर j इक्वल टू 0, इसका मतलब हमें एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करना है j, और उस j वेरिएबल को हम कहाँ से इनिशियलाइज कर रहे हैं, 0 से. कंडीशन क्या है, j शुड बी लेस देन n माइनस 1 माइनस आई. j शुड बी लेस देन n माइनस 1 माइनस आई. j की करंट वैल्यू कितनी है, 0. n की वैल्यू 4 माइनस 1 माइनस आई की करंट वैल्यू कितनी है, 0. इसका मतलब 0 शुड बी लेस देन 3. इज द कंडीशन ट्रू? यस, द कंडीशन इज ट्रू. अब अगर कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू, जरा इन 3 लाइंस को एक साथ समझिएगा, ठीक है? कंडीशन ट्रू हो गई, लूप विल इंटर इनसाइड, राइट? अब ये क्या कह रहा है, इफ aj इज ग्रेटर देन aj प्लस 1, a of j is greater than a of j plus 1, a of j is greater than a of j plus 1. a of j की करंट वैल्यू क्या है, j की करंट वैल्यू 0. इट इज आस्किंग दैट इफ a of 0 is greater than a of 1. अब a of 0 पे क्या है, 3 है, ठीक है? और a of 1 पे क्या है, 7 है. सो इज 3 ग्रेटर देन 7? नो, द कंडीशन इज वायलेटेड. अगर कंडीशन वायलेट है तो ये इफ के अंदर, इफ के स्ट्रक्चर, इफ के ब्लॉक के अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा, द कंट्रोल विल मूव आउट, ठीक है? अगेन वी विल रीच हियर, क्योंकि अभी हमारा ये वाला इंटरनल लूप का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ. इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है, राइट? इनिशियलाइजेशन हो गया था, कंडीशन ट्रू था, तो हम लोग अंदर गए, अंदर से जो भी हुआ वो एक अलग की बात है. उसके बाद फिर हम लोग आएंगे मॉडिफिकेशन पे. मॉडिफिकेशन हमसे कह रहा है j प्लस प्लस. इसका मतलब j की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ j हैज टू बी इंक्रीमेंटेड बाई 1. फिर आइए कंडीशन चेक कीजिए, j शुड बी लेस देन n माइनस 1 माइनस आई. j शुड बी लेस देन n माइनस 1 माइनस आई. n माइनस 1 माइनस आई की वैल्यू तो उतनी ही रहनी है, 3, क्योंकि ना तो n की वैल्यू चेंज हुई है, ना तो i की वैल्यू चेंज हुई है ना? तो इट हैज़ टू बी 3, लेकिन j की करंट वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है?
अब कह रहा है कि j शुड बी लेस देन n माइनस वन। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, द कंडीशन इज अगेन फाउंड टू बी ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप कंट्रोल कहाँ आएगा? अंदर आएगा। फिर वही चेक होगा इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस वन, यानी a ऑफ, अब j की करंट वैल्यू, हर बार वेरिएबल की करंट वैल्यू पिकअप होगी, a ऑफ 1 इज ग्रेटर देन a ऑफ 1 प्लस वन, यानी a ऑफ 2। a ऑफ 1 पे क्या है? 7, a ऑफ 2 पे क्या है? 9। इज द कंडीशन ट्रू? क्या 7 9 से बड़ा है? नहीं, 7 इज नॉट हैविंग अ वैल्यू ग्रेटर देन 9, राइट। सो अगेन कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई, कंट्रोल लूप से बाहर आया। फिर हम यहाँ पे जाएंगे j में, अगेन मॉडिफिकेशन, j विल बी इंक्रीमेंटेड बाई 1 अगेन, इसका मतलब j की वैल्यू हो जाएगी 2। जब j की वैल्यू 2 हो गई, अगेन हम अंदर आएंगे इफ aj इज ग्रेटर देन aj प्लस वन, राइट। अब aj का मतलब क्या हो गया? a ऑफ j का मतलब हो गया a ऑफ j की वैल्यू कितनी है? 2। तो कह रहा है इफ a ऑफ 2 इज ग्रेटर देन a ऑफ 3, aj इज ग्रेटर देन aj प्लस वन। a ऑफ 2 पे देखिए क्या है? a ऑफ 2 पे है हमारे पास 9 और a ऑफ 3 पे हमारे पास क्या है? 2। कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जा रही है। अब अगर कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू, द कंट्रोल विल मूव इनसाइड दिस ब्लॉक। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, इसको बार बार एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? एक वेरिएबल लिया है और उसमें इसने कॉपी किया है aj की वैल्यू टेम्प में। वी नो इट वेरी वेल, सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है या फिर इस तरह के एल्गोरिथम में क्या होता है, सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ RHS इज गेटिंग कॉपीड इनटू LHS, राइट। तो aj की वैल्यू उठ के आ जाएगी टेम्प में। a ऑफ j क्या है? a ऑफ 2 यानी 9, तो a ऑफ j की वैल्यू आ गई किसमें? टेम्प एक वेरिएबल है, इसमें a ऑफ j यानी a ऑफ 2 की वैल्यू आ गई जो कि है 9। अब हमारे पास एरे इस तरह से हो गया 3 7, यहां से वैल्यू उठ के यहां जा चुकी है और यहां रह गया 2, ठीक है। उसके बाद कह रहा है aj प्लस वन की वैल्यू aj में आ जाएगी। अब aj प्लस वन क्या है? a ऑफ j प्लस वन का मतलब 2 प्लस 1, इसका मतलब a ऑफ 3। अब a ऑफ 3 की वैल्यू सिंगल इक्वल टू है, RHS की वैल्यू LHS में कॉपी होगी, a ऑफ 3 की वैल्यू कहाँ आ जाएगी? a ऑफ 2 में। a ऑफ 2 में क्या आ जाएगी? a ऑफ 3 की वैल्यू। तो a ऑफ 3 पे क्या था? हमारे पास 2 था, ये 0 1 2 और ये 3, तो a ऑफ 3 पे हमारे पास 2 था, वो उठ के कहाँ आ जाएगा? a ऑफ 2 पे, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? टेम्प की वैल्यू a ऑफ j प्लस वन में कॉपी हो जाएगी। a ऑफ j प्लस वन क्या है? a ऑफ 3, ठीक है। तो टेम्प से उठ के वैल्यू कॉपी हो जाएगी यहाँ पे 9, ठीक है। अल्टीमेटली देखिए एक चीज समझिए, इफ aj इज ग्रेटर देन aj प्लस वन, ये अगर कंडीशन सही पाई जा रही है तो कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग एक थर्ड वेरिएबल को लेके aj और aj प्लस वन की वैल्यू को स्वैप कर दे रहे हैं। वहाँ कुछ नहीं, 9 2 से बड़ा था, हमने 2 और 9 को आपस में स्वैप कर दिया। वी नो इट वेरी वेल कि स्वैपिंग का एल्गोरिथम बहुत आसान होता है, हम लोग सब लोग जानते हैं। तो जब when 9 is found to be greater than 2, the value was interchanged, these two values were interchanged with each other, यही हुआ है, राइट। फिर यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो फाइनल हमारे पास जो एरे आ रहा है इस स्टेप के एग्जीक्यूशन के बाद, वो हमारे पास क्या आ रहा है? 3 7 2 9। j की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट कीजिए, j की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट होगा तो j की वैल्यू हो जाएगी 3, j की करंट वैल्यू हो गई 3। कंडीशन चेक कीजिए, क्या 3 जो है छोटा है n माइनस वन माइनस आई से? n माइनस वन का मतलब हो गया 3 माइनस आई यानी 0। इज 3 स्मॉलर देन 3? नो, द कंडीशन इज फॉल्स। भाई 3 इज इक्वल टू 3 इज नॉट स्मॉलर देन 3, सो कंडीशन इज फॉल्स। ये लूप हमारा टर्मिनेट कर जाएगा और फाइनली हम लोग पहुंच जाएंगे i पे फिर से, ठीक। जब हम i पे फिर से पहुंचेंगे, नाउ यहाँ पे क्या होगा? i प्लस प्लस i की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो व्हाट अल्टीमेटली आई वांट टू से कि जब i इक्वल टू 0 के लिए आप पूरा एक लूप एग्जीक्यूट कर रहे हो, j को जितनी बार भी एग्जीक्यूट करना आपने एग्जीक्यूट कर लिया, तो i के पहले पास के लिए जब जो हाईएस्ट एलिमेंट है दैट इज फाइंडिंग इट्स ओरिजिनल और एक्चुअल पोजीशन, and that element is supposed to be bubbled out, and that is why this sorting algorithm is called as bubble sort, ठीक है। तो i इक्वल टू 0 के लिए हमने ये पूरा एग्जीक्यूशन देखा, एंड द फाइनल एरे दैट वी हैव ऑब्टेन्ड हियर इज दिस वन, जिसका इंडेक्स है 0 1 2 3, ठीक है। नाउ फर्दर वी विल बी डूइंग द सेम एक्सरसाइज फॉर i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, ठीक है।
अब इस लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू, जे का एग्जीक्यूशन खत्म, हम लोग फिर से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब आई की जो प्रीवियस वैल्यू थी 0, अब आई की वो वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। कंडीशन चेक करेगा, इज 1 लेस देन n माइनस 1, 1 लेस देन n माइनस 1 यानी 3, इज 1 लेस देन 3, कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू। ये 1 है, ये 3 है, कंडीशन इज ट्रू, तो कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। फिर एग्जीक्यूशन शुरू होगा, j इक्वल टू 0, j की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी। कंडीशन चेक कीजिए, j इज लेस देन n माइनस 1 माइनस आई, j इज लेस देन n माइनस 1 माइनस आई, यानी 0 इज लेस देन n माइनस 1, ये हो गया 3 माइनस आई 1, 0 इज लेस देन 2, इज द कंडीशन ट्रू, क्या 0 2 से छोटा है, हाँ, कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आ जाएगा। कंडीशन चेक कीजिए, इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन a ऑफ 1, क्योंकि a ऑफ j अगर 0 है तो a ऑफ j प्लस 1 1 है, तो a ऑफ 0 पे हमारे पास में क्या है 3, और a ऑफ 1 पे हमारे पास में क्या है 7, तो यह क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल अगेन जाएगा, j प्लस प्लस, j की वैल्यू अब हो जाएगी 1। जब j की वैल्यू 1 हो जाएगी तो कंडीशन चेक करेगा, इज j यानी 1 लेस देन n माइनस 1 माइनस आई। अब n माइनस 1 माइनस आई की वैल्यू तो चेंज होने से रही, ठीक है, तो इज 1 लेस देन 2, क्या 1 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, अंदर आएगा, चेक करेगा, इफ aj इज ग्रेटर देन aj प्लस 1, a ऑफ j की करंट वैल्यू क्या है 1, इफ a ऑफ 1 इज ग्रेटर देन a ऑफ 2, अब a ऑफ 1 पे क्या है 7 है, और a ऑफ 2 पे क्या है 2 है, यस द कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग इसकी इंटरनल सेक्शन में आते हैं, और इंटरनल सेक्शन की कोडिंग हम लोगों ने पिछले स्वैप में पूरी तरह से पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि केवल aj और aj प्लस 1 की वैल्यूज को आपस में हम लोग एक्सचेंज करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, 7 और 2 ये दोनों वैल्यूज आपस में एक दूसरे के साथ पोजिशन एक्सचेंज कर लेंगी, तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 3 2 7 9, इंडेक्स 0 1 2 3। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे j प्लस प्लस, j की वैल्यू अब हो गई 2, कंडीशन चेक कीजिए, इज 2 लेस देन n माइनस 1 माइनस आई, इज 2 लेस देन n माइनस 1 माइनस आई की वैल्यू तो कोई चेंज होने वाली नहीं है, ये तो 2 ही रहेगी। इज 2 लेस देन 2, नहीं, 2 इज इक्वल टू 2 नॉट लेस देन 2, तो यहाँ पे कंडीशन हो जा रही है फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो पूरा का पूरा लूप यहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा, j का पूरा लूप टर्मिनेट हो गया, देन अगेन वी विल मूव टू दिस i प्लस प्लस, राइट, ठीक है। तो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई, हम लोग फाइनली i प्लस प्लस पर पहुँच चुके हैं। i की अभी वैल्यू हमने 1 से डील किया था, राइट, i की वैल्यू अब हो जाएगी, जब हम यहाँ पर हो जाएंगे i प्लस प्लस, यानी i की वैल्यू अगेन दिस विल बी इंक्रीमेंटेड बाई 1 एंड इट विल बिकम 2। देखिए एक चीज समझिए, i की वैल्यू 0 के लिए ये लूप चला है, i की वैल्यू 1 के लिए लूप चला है। When the loop was executed for the first time for I equal to 0, the highest element had basically occupied is its original space, अपना ओरिजिनल पोजीशन पे ये आ गया था। तो इन फर्स्ट पास when it was executed for I equal to 0, right, the first element was basically said to be bubbled out, right। जब I equal to 1 के लिए हमने चलाया, जब i इक्वल टू 1 के लिए हमने चलाया तो सेकेंड एलिमेंट, देखिए हाईएस्ट एलिमेंट तो आ ही चुका था, सेकेंड हाईएस्ट एलिमेंट भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। मतलब i इक्वल टू जिस भी वैल्यू के लिए हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जितनी बार वो पास एग्जीक्यूट कर रहा है, हर बार जो एलिमेंट है एक एलिमेंट अपनी स्पेसिफिक और ओरिजिनल पोजीशन पे आता जा रहा है, ठीक है। नाउ अगेन i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू 1 के लिए एग्जीक्यूट कर चुके थे, i प्लस प्लस हो गया, i की वैल्यू अब 2 के लिए हम एग्जीक्यूट करेंगे, i की वैल्यू 2 के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। कंडीशन चेक कीजिए, इज 2 लेस देन n माइनस 1, इज 2 लेस देन n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 इज 2 लेस देन 3, कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू। कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आ जाएंगे फॉर j इक्वल टू 0, अब j फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा, j इक्वल टू 0 से इनिशियलाइजेशन हमारा हो गया है ना। कंडीशन चेक कीजिए, j इज लेस देन n माइनस 1 माइनस आई, यानी 0 इज लेस देन n माइनस 1, 4 माइनस 1 माइनस आई की वैल्यू कितनी है करंट 2 है, राइट, तो 0 इज लेस देन 1, राइट, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, 0 इज लेस देन 1। अब 0 लेस देन 1 है, इफ द कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू द कंट्रोल विल एंटर द लूप। क्या कह रहा है, इफ aj इज ग्रेटर देन aj प्लस 1,
इफ ए ऑफ जे, और ए ऑफ जे कितना है अभी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे फॉर करंट सिनेरियो, इज ग्रेटर देन ए ऑफ 1। क्या ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 से बड़ा है, और ए ऑफ 0 पे क्या है 3 और ए ऑफ 1 पे क्या है 2, क्या 3 2 से बड़ा है, यस 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 तो 2 से बड़ा है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई राइट, तो इसका मतलब क्या है, कंट्रोल अंदर आएगा। कंट्रोल अंदर आने का मतलब ये कंडीशन ट्रू ही, कंट्रोल इस कोड सेक्शन में है। ये कोड सेक्शन क्या कर रहा है, ए जे और ए जे प्लस 1 की वैल्यू को सिंपली आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज कर दे रहा है, या टेक्निकली हम कहते हैं इनको स्वैप कर दे रहा है। तो यहाँ ए जे और ए जे प्लस 1 की वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएगी राइट। इसका मतलब क्या हुआ, 2 3 7 9, इंडेक्स विल रिमेन द सेम 0 1 2 3 राइट। फिर ऊपर जाइए जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो गई 1, कंडीशन चेक कीजिए, इज 1 लेस देन n माइनस 1 माइनस आई, क्या 1 n माइनस 1 माइनस आई से छोटा है, n माइनस 1 माइनस आई की वैल्यू तो हमेशा इतनी रहेगी 1 ही रहनी है। इज 1 लेस देन 1, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन वायलेट हो गई, ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर ये फाइनली कंट्रोल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये कंट्रोल फिर से वापस आएगा, घूम के आई में इंक्रीमेंट कर देगा। आई की वैल्यू कितनी थी 2, आई की वैल्यू अब हो जाएगी 3। कंडीशन हम चेक करेंगे, कंडीशन हम जब चेक करेंगे तो आई शुड बी लेस देन n माइनस 1, 3 शुड बी लेस देन n माइनस 1, n की वैल्यू 3 शुड बी लेस देन 3। इज द कंडीशन ट्रू, नो द कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई, ये पूरा लूप टर्मिनेट कर गया, एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, एंड द रिजल्टेंट दैट वी आर गेटिंग ओवर हियर इज 2 3 7 9 विच इज अ सॉर्टेड एरर राइट। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान देने की है। जब हमने पहले पास को यूज़ किया था तो पहले पास में द हाईएस्ट एलिमेंट वाज बबल्ड आउट राइट, सेकेंड पास में द सेकेंड हाईएस्ट एलिमेंट वाज बबल्ड आउट, इन थर्ड पास द थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट इज अगेन बबल्ड आउट, वी कैन सी टू इट वेरी इजिली राइट। और अगर कोई एलिमेंट है, कोई एरे है हमारे पास विच इज हैविंग n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n माइनस 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुके हैं, तो क्या nth एलिमेंट को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए कुछ करना है, नहीं भाई। 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट सही पे है तो दूसरा वाला तो अपने सही पोजीशन पे होगा ही होगा। सो देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दिस एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट मोर राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एल्गोरिथम, है ना। Now we will be seeing or we will be looking after some of the MCQs that are related to this bubble sort algorithm, right? The very first question is, what is an external sorting algorithm? Algorithm that uses tape or disk during the sort, algorithm that uses main memory during the sort, algorithm that involves swapping, algorithm that are considered in place, right? देखिए, एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम और इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम दो अलग अलग जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैं, ऑल दोज एल्गोरिथम्स बेसिकली कैन बी कैटेगराइज अंडर 2 कैटेगरीज, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अगर किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन में राइट वी हैव टू यूज सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी, इन दैट केस दैट सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज बेसिकली रिगार्डेड एज एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इस बेसिस पे हम देखें तो एल्गोरिथम दैट यूजेज अ टेप और डिस्क ड्यूरिंग द सॉर्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम राइट। अब यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन सी हो जाएगी? इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम होगी जिसको किसी भी एक्सटर्नल टेप या डिस्क की जरूरत नहीं होती, जो केवल मेन मेमोरी से अपना काम चला लेती है राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा ये, व्हाट इज एन इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर चुके हैं। एल्गोरिथम दैट यूजेस मेन मेमोरी ड्यूरिंग द सॉर्ट, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीजर इफ एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज नॉट यूजिंग एनी एक्सटर्नल सॉर्ट ऑफ मेमोरी देन दैट इज इंटरनल। अगर कुछ एक्सटर्नल सॉर्ट ऑफ मेमोरी, चाहे वो हार्ड डिस्क है चाहे कुछ भी यूज करे, देन दैट इज एक्सटर्नल, अदरवाइज इट इज इंटरनल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एल्गोरिथम दैट यूजेस मेन मेमोरी ड्यूरिंग द सॉर्ट राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the average case complexity of the bubble sort? This is the next question जो हमें देखना है। देखिए जब हम लोगों ने अभी एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन किया था तो पहले स्वैप में पहले एलिमेंट के लिए हम लोग कितने कंपैरिजन कर रहे थे? 3 कंपैरिजन कर रहे थे, 4 एलिमेंट थे तो राइट। सो इफ इन जनरल इफ देयर आर n-1 एलिमेंट्स, n एलिमेंट, वी विल बी डूइंग n-1 कंपैरिजन। पहले पास के बाद हमें क्या पता चला था कि एक एलिमेंट अपनी ओरिजिनल सॉर्टेड पोजीशन में पहुंच गया है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन्स फिर घट जा रहे थे। दूसरे पास के लिए हम लोग कितना कर रहे थे? n-2, तीसरे पास के लिए n-3 एंड सिंपली इट विल बी डिटोरिएटेड टुवर्ड्स 3 + 2 + 1। इन दिस वे द सीरीज विल एंड अप
right? And we have to compute the consequent value of this equation, right? अब ये है क्या? This is the sum of n natural number. क्लास 9th 10th में हम लोग पढ़ते हैं the formula for sum of n natural number which is n by 2 2a plus n minus 1 into d, right? Over here the total number of elements is n की जगह पे क्या है? n minus 1 है. So it will be n minus 1 by 2 2a. a is basically the first element of the series. यहाँ पे पहला element क्या है? 1. तो it becomes 2.1 plus n minus 1 into d. n minus 1 देखिए n की जगह हमारा n minus 1 है, इस n की जगह ये पूरा n minus 1 आ रहा है, minus 1 d कॉमन डिफरेंस होता है दो एलिमेंट का, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस ये 1 ही है. सो इट बिकम्स n minus 1 by 2 2 plus n minus 2. This becomes n into n minus 1 by 2. And if we have to consequently express this algorithm in single term, then we know it that the highest power will be n square. So whenever we have to represent the complexity of the algorithm, we always used to consider the variable with maximum power. ये हम लोग पिछले कई वीडियोस में देख चुके हैं. So the average case complexity of this algorithm will be big of n square, right? Now let me ask you a question that अगर मैं बात करूँ वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि हर एलिमेंट अपने गलत पोजीशन पे हो, राइट? जिसको फर्स्ट पे होना है वो सेकंड पे हो, जिसको सेकंड पे होना है वो थर्ड पे हो, जिसको थर्ड पे होना है वो फोर्थ पे हो, और जिसको फोर्थ पे होना है वो ना. हर एलिमेंट अगर अपनी गलत पोजीशन पे तो वर्स्ट केस होगा, उसमें भी नंबर ऑफ कंपैरिजन इतने ही रहेंगे, राइट? हर एलिमेंट के लिए आप मैक्सिमम कंसीडर करोगे. पहली बार के लिए आप n-1 कंपैरिजन, दूसरी बार के लिए n-2, तीसरी बार के लिए n-3. तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हो चाहे एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी हो, दोनों ही केस में इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा या कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंटेबल होगी, दैट विल बी बिग ऑफ n स्क्वायर, राइट? What is the best case complexity of bubble sort? Bubble sort की best case complexity क्या हो सकती है? The only best case possible is जब हम bubble sort से किसी भी arrow को sort करने जाएं, every element is supposed to be presented on its actual position. हर element अपनी original और actual जगह पे हो, that is the best case. उस केस में भी हर एलिमेंट अगर अपनी ओरिजिनल और एक्चुअल जगह पे हो तो आपको n-1 टाइम्स तक के लिए वो एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, राइट? तो इन जनरल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे प्रेजेंट हो सकती है? बिग ऑफ n. सो ओवर हियर द करेक्ट आंसर विल बी बिग ऑफ n, right? So I think this is all about the bubble sort algorithm that we have studied just now, right? We have also dealt with few of the MCQs, right? And I again want to repeat the same thing that I used to repeat after the execution part of my video is over, that if you do have any query or if you do have any doubt, you are most welcome to ask them. You can leave your doubts in your comment box also, in the comment box also, or if you directly want to ask me, you can ping me on this number or you can send a mail on this email ID also, right? देखिए मैं फिर से एक चीज़ आपको लास्ट पे कहना चाहूँगा कि किसी भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के दो तरीके होते हैं. आइदर यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट एल्गोरिथम along with the help of the steps, or you can directly proceed for the execution with some shortcuts. Shortcuts are also available corresponding to almost each and every algorithm. There are shortcuts, but जब आप shortcuts पे जाओगे तो आप NIMSET के और GATE के questions को handle नहीं कर पाते, because they are not going to simply ask you that what is the correct position of this, how many number of passes will it take to reach this particular position. नहीं, उनका question कहीं ना कहीं आपको algorithm से connected ही मिलेगा. So don't go for shortcuts if you want to tackle the questions which are generally asked in these examinations, right? So this is all for this video. Thank you all.